Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. If you are watching this video first time, I request you to subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notification. Friends, today we are going to learn investment account from CA Inter Group 1 accounts. Today we are going to do question number 1, which is very basic question to make you understand how you record the accounting transactions in the books of investor. It's very simple and basic level question for the beginner. It is very easy. Let's see question number 1, which is now on your screen. Students, let's read the question. In 2011, Messrs. Y Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each, interest being payable half yearly on 30th September and 31st of March every accounting year. On 1st December 2012, Messrs. Bull and Bear purchased 10,000 debentures. Of these debentures at rupees 101 cum interest price, also paying brokerage at 1% of the cum interest amount of the purchase. On 1st March 2013, the firm sold all of these debentures at rupees 106 cum interest price, again paying brokerage of 1% of cum interest amount. Prepare investment account in the books of Messrs. Bull and Bear for the period 1st December to 31st of March. They are asking you your account only for this period. और ये पीरियड में भी सिर्फ और सिर्फ ये दो ही ट्रांजैक्शन है. तो आराम से ये क्वेश्चन आपको बेसिक सिखा देगा. अभी अपने को क्या बनाने का है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का है. और वो भी कौन सी इन्वेस्टमेंट है सर? फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट है. डिबेंचर्स ऑफ विच कंपनी? डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, राइट. उसका फेस वैल्यू कितना है? 100. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%. इंटरेस्ट पेबल कौन सा डेट है? 30th सितंबर एंड 31st मार्च. तो याद रखना, इंटरेस्ट ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, इम्प्लाइड कैलकुलेशंस है, वो हम लोग को करने पड़ेंगे. लेट्स प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर. Students, what they have asked you? They have asked you to prepare the investment account for the period 1st December to 1st of March. तो ये पीरियड का ही आपको अकाउंट बनाने का है, तो बी केयरफुल. उससे बियॉन्ड कोई अकाउंट है नहीं अपना, ठीक है. तो आप चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया है. ऑन 1st December 2012, Messrs. Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at rupees 101 cum interest price, also paying brokerage at 1% of a cum interest amount of the purchase. ठीक है. तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो ऑब्वियसली आपका एंट्री क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. नॉट ओनली दैट, वी आर डूइंग ट्रांजैक्शन ऑन 1st December. तो आप जिसके भी पास से परचेस करोगे उसको इससे पहले का जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो भी देना पड़ेगा. अगर आप ठीक से चेक करोगे, दिसंबर 1 से पहले लास्ट इंटरेस्ट आपने पे किया होगा 30 सितंबर को, तो ऑब्वियसली अक्टूबर एंड नवंबर ये 2 महीने का इंटरेस्ट अराइज तो हुआ है, तो वो सामने वाली पार्टी आपको इसके अंदर इंटरेस्ट भी लेगी और वो यहाँ पे इंक्लूड हुआ है बिकॉज ये कम इंटरेस्ट प्राइस है. तो जब भी आप कैलकुलेशंस करोगे तो कुछ कैलकुलेशंस कंफर्म है जो आपको करने हैं, वेदर इट इज अ परचेस ट्रांजैक्शन और सेल ट्रांजैक्शन. कौन से कैलकुलेशन से हम लोग देख लेते हैं. दिस इज योर वर्किंग नोट स्पेस. यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं. पहला वर्किंग नोट, purchase of debenture 1st of December 2012. When you do the calculation, you have to find out 3 things for your reference: face value, interest and cost. तो यहाँ पे आपने जो debentures purchase किए हैं उसका face value क्या होगा? आपने परचेस किए हैं 10,000 ऑफ द डिबेंचर्स, ठीक है, एट रुपीज 101. बट व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज 100. विल इट बी 10 lakhs? ठीक है, ये 10 लाख होगा. फिर इसका इंटरेस्ट जो सामने वाली पार्टी आपके पास से लेगी
ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट जो है वो कौन से पीरियड का होगा सर? 30 सितंबर से लेके आपका ट्रांजैक्शन है 1 दिसंबर, मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड सर? 10 lakhs at how much rate? 12% rate for 2 months. 20,000 interest. I need to work out cost. कॉस्ट कैसे वर्कआउट करेंगे? ये जो डिबेंचर्स है आपने कैसे परचेस किए? 101 कम इंटरेस्ट प्राइस, ऑल्सो ऑन दैट यू पेड अ ब्रोकरेज, ठीक है? 10,000 डिबेंचर्स एट 101, इट इज 10,10,000. उसके बाद आपने ऐड क्या किया? ब्रोकरेज एट 1%, 10,100. कॉस्ट निकालने के लिए मुझे इसके अंदर से आपका इंटरेस्ट एलिमेंट क्या करना होगा? माइनस. तो माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वी नो इट इज 20,000. It is 10,100,000. It is how we have purchased investment. 1st December 12, investment account debit to bank account as per our working note number 1. तो working note यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल में लिख रहा हूँ, working note number 1. Face value of the investment you purchased 10 lakhs. Of that interest amount is 20,000 and your effective cost is 10,100,000. It is how you have purchased. Then next transaction is given on 1st of March. On 1st March they sold all of the debentures. Firstly, before 1st March, don't you think interest will be there? Because अगर आप देखोगे 1 दिसंबर को आपने डिबेंचर्स क्या किया था? खरीदा था, और 1 मार्च को आप बेच रहे, तो इसके बीच में कोई इंटरेस्ट का डेट है क्या? जरा चेक करो. 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च तक कोई भी इंटरेस्ट अराइज नहीं हुआ है, कोई भी हाफ ईयरली इंटरेस्ट नहीं है. डायरेक्टली आपने क्या कर दिया? बेच दिया है. तो 1 मार्च को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, ठीक है? तो वंस अगेन वी विल डू द वर्किंग फॉर सेल एग्जैक्टली इन द सेम वे. एग्जैक्टली इन द सेम वे विल डू कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड. Tell me which 3 things you need to work out: face value, interest and cost. So face value. Face value, you have sold all 10,000 debentures having a face value of rupees 100. Will it be 10 lakhs? Interest. Interest will be calculated from the last interest date which was 30th September, ना के 1 दिसंबर. बराबर है. जब हम लोग बेचेंगे तो सामने वाले के लिए वी आर होल्डर फ्रॉम 30th सितंबर. तो थोड़ा आराम से सोचो, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने वाई लिमिटेड ने कब दिया होगा? 30 सितंबर को, और मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 मार्च को. तो आई कैन से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है. सो आई कैन से 30th सितंबर to 1st of March, it is a period of approximate 5 months. So how you will calculate the interest? It is on 10 lakhs at 12% for 5 months. It is 50,000. आपका इंटरेस्ट कितना हुआ सर? 50,000 हुआ है. फिर मुझे इसका क्या वर्कआउट करना पड़ेगा सर? कॉस्ट. याद रखना अभी हम लोग कॉस्ट कर रहे हैं while selling the investment. जब आप सेल करते हो तो आपके सेल प्रोसीड में से ब्रोकरेज ऐड नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है? तो पहले मुझे देखने दो कितने रेट में हम लोगों ने डिबेंचर्स बेचे थे. 106. It is 10,60,000 entire amount we have received. From that, first and foremost we have to minus brokerage at the rate of 1%. क्लियरली बोला इसके ऊपर 1% ब्रोकरेज आएगा. 10,600 I need to pay. It will reduce my price, sale price, and it is including interest. Therefore, I need to minus interest. इसके अंदर इंटरेस्ट कितना इंक्लूड होगा सर? 50,000. तो व्हाट इज माय नेट कॉस्ट?
and being it is a sales transaction, it is our selling price 999,400. तो अपना नेट सेलिंग प्राइस हो गया 999,400. जब इन्वेस्टमेंट खरीदते तो आपका एंट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक. अगर बेचेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट. ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आल्सो विल बी क्रेडिटेड. ऑन व्हाट डे वी आर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन, 1st March 13. by bank account. It is as per your working note number 2. Face value of investment sold 10 lakhs. Interest amount 50,000. And net cost we have realized 999,400. Now let me tell you students, ये जो फेस वैल्यू कॉलम है ये सिंपल एक मेमोरेंडम कॉलम है. इंटरेस्ट कॉलम ये एक्चुअल इंटरेस्ट अकाउंट है और ये जो कॉस्ट कॉलम है ये आपका एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. तो ये फेस वैल्यू सिर्फ मेमोरेंडम कॉलम है. इट इज यूज ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. अच्छा, और एक बात, जब आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो आपको क्या होता है, या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस. तो अपने केस में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, चेक करो. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. अच्छा, कौन सी तारीख को सेल कर रहे हैं हम लोग, 1st March 13 को. आप चेक कर सकते हो ये इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने अभी सेल किया उसका सेल प्राइस 999,400 है, जबकि इसका कॉस्ट प्राइस पहले हम लोगों ने वर्कआउट किया था 10,100,000. आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो. ठीक है. तो कहने से मेरा सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो आई कैन से देयर इज अ लॉस. बराबर है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 999,400. मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है ये इन्वेस्टमेंट का, 10,100,000. बराबर है. तो कैन आई से सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट, therefore loss is equal to 700. लॉस हो गया 700. तो ये लॉस आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, ये लॉस आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन 1st March itself. टू मैच दिस कॉस्ट कॉलम, ये लॉस हम लोग कॉस्ट कॉलम मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा. नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट. फेस वैल्यू और कॉस्ट कॉलम आपका टैली हो जाएगा. इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट में टोटल है 50,000 और डेबिट में टोटल है 20,000. तो कांट आई से 30,000 का इंटरेस्ट आपने कमाया. ठीक है. ये इंटरेस्ट आपने जो कमाया है वो आप ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड ऑन द सेम डेट 1st March 13, बिकॉज आपको अकाउंट बनाने को बोला है अप टू 1st March. अगर ये अकाउंट में 31st March तक बनाता हो तो आई विल ट्रांसफर दिस ऑन 31st March 2013. तो इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज योर नेट अर्निंग. आपने सामने वाले को पे किया था 20,000 लेकिन आपने रिकवर कर दिया 50,000. तो कॉमन सेंस की बात है, आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया, 30,000, जो आपका प्रॉपर इनकम है जो पीएल अकाउंट में जाएगा. आई बिलीव ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए बहुत काम आएगा. क्या क्या बातें अपने को अंडरस्टैंड करनी है. जब भी आप डिबेंचर्स खरीदते हो तो ब्रोकरेज ऐड होता है और डिबेंचर्स बेचते हो तो ब्रोकरेज माइनस होता है. बराबर है. बिकॉज खरीदते समय अगर आपने ब्रोकरेज दिया तो वो आपका कॉस्ट बढ़ाएगा और बेचते समय आपने डिबेंचर दिया तो वो आपका सेलिंग प्राइस कम करेगा. बराबर है. ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में दिया जाता है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप जैसा एजम्पशन करो चलेगा. If you assume it is on come interest price, you will take it on come interest price. If you assume it on x interest price, you will take it at x interest price. कुछ लोग बोलते कि नहीं सर हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस उसके ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं, वो भी चलेगा. आप जो भी कैलकुलेशन लिखोगे उसके लिए आप एक एजम्पशन जरूर लिखना, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द पेपर पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर. तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बेसिक बातें ध्यान में रखना है. ये क्वेश्चन अभी का ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बट आई टेल यू ये क्वेश्चन में कम से कम 10-12 वर्किंग नोट, ये कॉमन बात है.
तो ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन बहुत लेंथ लेगा आपका बहुत पेशेंस चेक करेगा ये क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो इजी है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली समझा होगा। Before I wind up the video, I want you to put your comments. Whatever difficulties you are having, you put comments so that we will try to resolve it. Please share this video with your friends so that they will be also benefited. Thank you for watching this video. God bless you all.